Very welcome to all the parents and students of HMS. We are really glad and we welcome you all to this broadcast, this webinar on managing the quarantine. I hope all are doing well and hope you're enjoying your vacations, and we wish you a safe and a happy journey in these vacations. So these are very trying times for us right now. So it's very, very important in these trying times because it has been an unprecedented situation for all of us to face. And in these trying times, the COVID-19, it becomes really important for us to actually manage our relationships, to work on our emotions and kind of rekindle our familial bonds. Keeping that into perspective, so I would begin with a quote that the mind can only be tamed by the power of breath. We can only have control over emotions through the power of breath. So keeping that into perspective, we have organized this interactive session called Managing Quarantine. Because in these trying times, it is through the power of breath, through the control of our emotions, that we get a fair idea as to how to build strong relationships. And we hope that this particular session works wonders for you. Not taking much of your time, I would like to introduce to you our very eminent faculty who is associated with the art of living, Miss Pooja Arora. She has been superbly talented and she would be conducting this particular session with you, managing quarantine. I hope this webinar, this interactive session proves to be wonders and a very constructive interactive session with all of you. Now I'll ask Ms. Pooja to take over. Thank you so much. Great. Thank you so much, Anaita, for this lovely introduction. And we welcome you all on this amazing platform. So my very, very heartiest welcome to all of you who have been watching this webinar, and a bigger and a sincere thanks to Astha ma'am for having this arranged. So I think it's incredibly awesome in this lockdown. Your school, faculty, teachers, principal, everybody is taking this initiative of going ahead and ensuring that you and your mind in this lockdown, in this quarantine, is safe. So thank you so much, Happy Model School, the management, principal, all the teachers and the faculty members. It's really amazing how much care and affection you have towards your kids, students, their parents. So on behalf of the entire fraternity of Art of Living, I would like to welcome you to this amazing, I think about 45-50 minutes we to talk. I have a few questions also, which I'll be happy to address. And in the course of time, if you have any questions, please feel free to punch in and I will be taking it forward from here. But before we go ahead, there's a small story in this lockdown which I would like to share with you. So Hindi, English दोनों का mixture चलेगा, and I hope that works well for you guys. कुछ साल पहले की बात है, right? एक मुल्ला नसरुद्दीन करके एक शख्स था. मुल्ला नसरुद्दीन एक गधे के साथ जा रहा है और चलते जा रहा है और बहुत सारे गांव वाले उनको देख रहे हैं और गांव वाले देखने के बाद उनको बोल रहे हैं, मुल्ला कब से चले जा रहा है, कहाँ जा रहा है? You know what does मुल्ला say? मुझे क्या पता, गधे से पूछो. That's exactly our life today, isn't it? मुझे नहीं पता लाइफ कहाँ जा रही है, जिंदगी से पूछो कहाँ जा रही है. And in all this process, गांव वालों ने क्या सोचा, कौन है गधा, मुल्ला या गधा? Yeah. And that's exactly what is happening in our life. We are just walking. घर के काम और घर से काम, बच्चे और माँ बाप दोनों के बीच में the biggest generation that is getting flawed right now is the parents, right? You have your parents and your kids to deal with. And all this is causing a lot of anxiety and stress. You know, गुरुदेव श्री श्री रवि शंकर जो इस ऑर्गेनाइजेशन के CEO या फाउंडर हैं आर्ट ऑफ लिविंग के, he says a very nice line. He says, what is stress? आप लोग डिफाइन कर सकते हैं स्ट्रेस क्या है, राइट? टू मच वर्क, बहुत सारा काम, टू लिटिल टाइम, यस,
एंड टू लिटिल एनर्जी। ना आप काम कम कर सकते हैं, कपड़े करने ही हैं, बर्तन करने ही हैं, बच्चों को देखना ही है, माँ बाप को देखना ही है, घर के काम और घर से काम भी करने हैं, तो इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। एट द सेम टाइम यू ऑलवेज हैव एनर्जी क्वेश्चन। अब आप काम तो ऑल्टर नहीं कर सकते हैं, राइट, और ना ही टाइम ऑल्टर कर सकते हैं। 24 घंटे आपके पास भी हैं, 24 घंटे हमारे पास भी हैं, 24 घंटे प्राइम मिनिस्टर के पास भी हैं। But what makes the difference is the energy. Yes. This energy is something which you can alter, and like Anahita said very beautifully, the whole thing is about the breath, right? So अगले 30-40 मिनट हम सिर्फ 2-3 चीजों के बारे में बात करेंगे जिनके ऊपर हमारा वश चल सकता है, which is basically your mind and your breath. Yes, I hope you are ready because it's a webinar, so I can't see you all. पर अगर मैं देख सकती हूँ और आप मुझे देख सकते हैं तो आप थम्स अप दे सकते हैं या फिर आप मुझे ओके बोल सकते हैं। सो आई नो आप जग रहे हैं, सैटरडे अर्ली मॉर्निंग नाश्ता करके हम सोए नहीं हैं अभी तक। So going forward, I know that we have this a lot of anxiety today, right? A lot of stress कि how do we handle this quarantine? How do we handle this lockdown? हम कैसे मैनेज करें? पर पता है, इस समय के लिए हमने बहुत साल इंतजार किया है, और आज जब ये समय आ गया है कि हाँ हम अपने फैमिली के साथ बैठे हैं, हम अपने बच्चों के साथ बैठे हैं, अपने पेरेंट्स के साथ बैठे हैं, और हमें लग रहा है कब खत्म होगा भगवान, हम ही क्यों, एस वाई आज एक एक दिन इतना भारी बीत रहा है। क्यों? क्योंकि बच्चा कभी ग्लास तोड़ देगा, एक ग्लास दूध का निकाल के दूसरे ग्लास में डालेगा, एंड कहीं ना कहीं यू विल ऑलवेज फील क्यों, मतलब 2 ग्लास बर्तन एक्स्ट्रा मुझे क्यों करना पड़ रहा है। सिर्फ इन छोटी छोटी चीजों से भी हमारा मन ऐसे हिल जाता है और हमें लगता है बहुत स्ट्रेस है। आई होप यस नो या एक दिन कपड़ा टी शर्ट एक्स्ट्रा पहन लिया, पसीना नहीं आया, अगले दिन मत उतारो ना, वही पहने रखो, क्यों बर्तन कपड़े हमारे बढ़ा रहे हो। ये सब छोटी छोटी चीजें सबसे पहले जो चीज खराब करती है वो होता है आपका मन। एंड एज अ पेरेंट इफ यू कांट हैंडल योर माइंड यू कांट हैंडल योर लाइफ। यस, सो एक एग्जाम्पल देखते हैं। सो आई थिंक यहाँ पे बहुत सारे टीचर्स और पेरेंट्स हैं। सो लेट्स से आई कैन टेक अप अंकिता, राइट। सो अंकिता, या आप खुद सोचिए एक ऐसा माहौल है, हसीन वादियां हैं, आप स्विट्जरलैंड की वादियों में बैठे हैं, प्रॉपर ऐसे नदी सामने से बह रही है, आप पीना कोलाडा सिप कर रहे हैं, आपका पार्टनर आपके साथ है, आपके बच्चे आपके साथ हैं, एंड यू आर हैविंग द परफेक्ट वेकेशन, एक अमेजिंग सा वेकेशन चल रहा है आपका। एंड सडनली आपको फोन आता है घर से कि आपके पेरेंट्स की तबीयत ठीक नहीं है। yes. क्या वो वादियां, वो नदी, वो सब कुछ सेम फील करेगा? I guess no, yeah, because your perfect vacation outside is not anymore the same because अंदर कुछ बदल गया। I hope yes. On the contrary, let's say Garima, or for that matter, all you people who are in Delhi have taken the metro. आप सबने मेट्रो तो लिया ही है, right? Now in that metro, आप सुबह सोचो 8:30 बजे आपको राजीव चौक जाना है, right? और राजीव चौक में एक, हमें पता है अच्छे से क्या हालत होती है, इवन इफ इट्स अ वुमेन्स कोच, हमें पता है कि हम, ये बहुत बड़ा मिथ है कि आज की डेट में आपको वुमेन्स कोच में सीट मिल जाएगी। यस, मैं प्री कोविड या पोस्ट कोविड की बात कर रही हूँ, नॉट ड्यूरिंग द कोविड। सो एंड आप मेट्रो में घुसते हो, किसी तरह से आप भाग के अंदर चढ़ जाते हो, अंदर पूरा बैग खींचते हो, किसी तरह से आप बस खड़े हो, ऐसे लटक रहे हो, लोगों की दुर्गंध और अच्छे अच्छे आपको अपशब्द सुनाई दे रहे हैं। बट एट द सेम टाइम you get a phone call from your office or from your principal that you have been promoted, you got 30% hike, आपको 30% तनख्वाह में बढ़ोतरी मिली है। क्या आपका स्टेट ऑफ माइंड वही ग्रम्बलिंग रहेगा? यस, आई गेस नो, इट विल नॉट बी द सेम। व्हाई? अगेन बिकॉज आपका वातावरण सेम रहा बट कुछ अंदर बदला। यस, जो ये अंदर बदल रहा है ये कुछ नहीं है, बस इसको मन बोलते हैं। yes. So, बहुत एक सिंपल सी लाइन है, कहते हैं द क्वालिटी ऑफ योर लाइफ डिपेंड्स ऑन द स्टेट ऑफ योर माइंड। जैसा जीवन है वो वैसा क्यों है? क्योंकि आपका मन वैसा है। So, अगर आपको लगता है कि आज की डेट में एल्प्स में रह के भी हम खुश नहीं हैं क्योंकि मन खुश नहीं है,
राइट? हम पूरा जीवन किस लिए करते हैं? डिवोर्स लेते हैं खुश रहने के लिए, शादी करते हैं सोच के कि खुश रहेंगे, बच्चे पैदा करते हैं खुश रहेंगे। अगर आपके बहुत छोटे बच्चे हैं तो आपको लगता है सिर्फ एक खुशी मिल जाए, 2 घंटे लगातार अनइंटरप्टेड स्लीप। यस, 2 घंटे बस मुझे सोने को मिल जाए और कुछ नहीं चाहिए। Yes. So the quality of your life depends on the state of your mind. And इतने साल हमने हर तरह का आर्ट इकट्ठा करा, राइट? एक और स्टोरी सुनाती हूँ। आई होप यू आर रेडी फॉर द स्टोरी। या सो एक, तो आप लोग सब टीचर्स हैं या फिर पेरेंट्स हैं या वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, आई एम गेसिंग। एक बोटमैन था, राइट? एक प्रोफेसर था, एक बोटमैन था। अब प्रोफेसर को एक नदी क्रॉस करके दूसरे छोर की ओर जाना था। Now this professor is a renowned professor, ऐसे हार्वर्ड ग्रेजुएट प्रोफेसर। उसको नदी पार करनी है और वो बोटमैन को बोलता है, बोटमैन क्या मुझे उस तरफ छोड़ दोगे? तो बोटमैन बोलेगा, हाँ साहब बिल्कुल छोड़ दूंगा, राइट? एंड देन ही सिट्स ऑन द बोट। अब विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, एज अ प्रोफेसर या एज अ टीचर हमें बोलने की बहुत आदत होती है, राइट? अब तो बोटमैन जैसे ही बैठा, बोटमैन ने बोला, प्रोफेसर जैसे ही बैठे बोटमैन को बोलते, बोटमैन तुमको फिजिक्स आती है? तो बोटमैन बोलेगा, क्या साहब फिजिक्स में, अगर बोटमैन मतलब मैं नदी में ऐसे क्यों रहता अगर मुझे फिजिक्स आती होती? तो बोलता, तुम्हारा 25% जीवन वेस्ट हो गया है। बिकॉज अगर तुम्हें फिजिक्स आती होती तो तुम अपनी बोट का डायमेंशन सही कर सकते, सब कुछ इन्वेंट कर सकते, एंड यू कुड हैव डन समथिंग मोर जस्ट बाय नॉट सिटिंग इन दिस बोट। थोड़ा सा और आगे गए एंड आगे जाके फिर बोटमैन को बोटमैन बेचारा तो ऐसे शांत है, प्रोफेसर को चुल मची। प्रोफेसर बोलता आके, साहब प्रोफेसर बोलते, बोटमैन क्या तुमको मैथमेटिक्स आता है? मैथ गणित का ज्ञान है? बोटमैन ने बोला, क्या साहब मतलब गणित ओके, 1 + 1 करके ऐसा 2 रुपया होता है, इतना मालूम है? तो बोटमैन को ऐसे देख के प्रोफेसर बोलता, क्या तुमको अगर मैथमेटिक्स आता, तुम्हें पता होता कि तुम कैसे अपना पूरा रजिस्टर मेंटेन कर सकते हो, कैसे कर सकते हो सब कुछ आगे बढ़ सकते हो जीवन में, तुम्हें नहीं आता, तुम्हारा 50% जीवन वेस्ट हो गया है। थोड़ा सा और आगे बढ़े, अब प्रोफेसर को फिर चुल मची। प्रोफेसर बोलते, अच्छा सुनो, तुम्हें फाइनेंशियल मार्केट, स्टॉक मार्केट ये सब तो आता ही होगा ना? तो फिर बोटमैन बोलता, साहब अब ना आप मेरी तौहीन कर रहे हैं, नहीं आता है। तो कहते, तुम्हारा 75% जीवन वेस्ट है। अगर तुम्हें आता होता तो तुम इन्वेस्ट कर पाते, तुम जान पाते कि क्या हो रहा है मार्केट में, तुम और बोट शायद खरीद पाते, पर तुम्हारा लाइफ वेस्ट है। थोड़ा सा आगे गए, तब तक नदी के बिल्कुल बीचों बीच पहुंच गए। एंड अब बोटमैन ने पलट के पूछा, साहब आपको स्विमिंग आती है? प्रोफेसर ने क्या बोला, नहीं मुझे स्विमिंग नहीं आती है। साहब आपका 100% जीवन वेस्ट हो गया है। यू हैव लॉस्ट 100% ऑफ योर लाइफ। यू नो व्हाई? बिकॉज देयर इज अ होल इन द बोट एंड द बोट इज सिंकिंग, राइट? तो हमने पूरा जीवन खाना बनाने की कला सीखी, द आर्ट टू कुक, द आर्ट टू पेंट, द आर्ट टू राइट, रीड, वर्क, हैंडल किड्स। बट पूरा जीवन हमने 20, 25, 30, 35, 40 साल निकाल दिए। वी डिड नॉट लर्न द आर्ट टू हैंडल आवर माइंड। यस, हमने अपना मन साफ करना कभी नहीं सीखा। इस क्वारंटीन में आपने शायद 2 रेसिपीज नहीं सीख ली, शायद रोज आप कुछ नया इन्वेंट कर रहे हैं, कपड़े और अच्छे से धोने सीख लिए, घर को और अच्छा सजाना सीख लिया, पर क्या आपने अपने मन को हैंडल करना सीखा? बच्चों को हम कितनी कन्वीनियंटली बोलते हैं, गुस्सा मत करो, ये काम करो, बट ये बोलते बोलते अपना मन एकदम हिल जाता है, आप सेंटर्डनेस से परे हो जाते हैं। तो जैसा आपका मन वैसा जीवन। तो अगर आप अपने मन को साफ नहीं कर सकते तो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आगे चल के आपके बच्चे आपकी सुने या उनको भी गुस्सा नहीं आए, बिकॉज आप गुस्सा नहीं करो, ये बोलते बोलते खुद गुस्सा हो रहे हैं। यस, और बचपन से हमारे साथ ऐसा होता है ना, गुस्सा मत करो, खाना खाओ, ये मत करो, फोन मत यूज करो, टॉम एंड जेरी बाद में देखना।
बट इन ऑल दिस प्रोसेस क्या हमारा मन साफ था? नहीं. So I invite you to this amazing workshop. Your school has taken this initiative, this amazing workshop, which is in conjunction with Art of Living, where we teach these beautiful techniques on how to handle mind. Yes, क्योंकि आज की डेट में आप अपने बच्चों को हैंडल करने से पहले अगर खुद को हैंडल करना सीख जाएंगे, अपने मन को हैंडल करना सीख जाएंगे, अपने आप आपके बच्चे आपको देखकर इंस्पायर होंगे. राइट. अगर आप गुस्सा रह के उनको बोलेंगे तो ऑटोमेटिकली दे विल नॉट लर्न. वो बोलेंगे आप खुद क्या कर रहे हो, मुझे क्या बोलोगे. और आज के डेट में क्या हम अपने पेरेंट्स को ये सेम चीज नहीं बोलते हैं? यस, वी ऑल्सो से द सेम थिंग टू आवर पेरेंट्स. राइट. गुस्सा क्यों कर रहे हो? आप मुझे गुस्सा करने से मना करो, खुद कर रहे हो. यस. सो आपको पता है कि इमोशंस जो हैं इनको आप अपने इमोशन या मन के स्तर पे कंट्रोल नहीं कर सकते. So, अब आप मुझे क्विकली आंसर दीजिए, मे बी ऑन द चैट. व्हेन यू आर एंग्री, जब हम गुस्सा होते हैं तब हमारी श्वास कैसी होती है? यस, यू कैन स्टार्ट गिविंग मी योर आंसर्स. जब हम गुस्सा होते हैं तब हमारी श्वास कैसी होती है? So I'll wait for a few seconds. I think there's this little lag in the streaming, but I know you can start writing. जब हमें गुस्सा आता है तब हमारी how is the breath? Yeah, it's fast. Yeah, some of you have started writing it. Yes. And when you are sad, how is your breath? जब हम दुख में होते हैं, yeah, तब हमारी श्वास कैसी होती है? जब बहुत दुख है जीवन में, राइट, बहुत ऐसा सदमा लगा तो कैसी होती है हमारी श्वास? इट्स शैलो, इट्स डीप, पता भी नहीं है आ रही है या नहीं. यस. एट द सेम टाइम आपने कभी ध्यान नहीं दिया होगा, बट मैं आपको आज एक थोड़ा सा एग्जाम्पल देती हूँ. थिंक हाउ इज योर ब्रेथ व्हेन यू आर स्कैर्ड. जब हमें डर लगता है तब हमारी श्वास कैसी होती है? जब अब कोई बच्चा आके आपके पीछे से भाऊ मम्मा, भाऊ पापा ऐसे कर देता है, हाउ इज द ब्रेथ एट दैट टाइम? You know what? You don't have breath for few milliseconds. आपकी इतना दिल थम गया, प्यार वाला नहीं बट डर वाला. सो डर में आपकी श्वास रुक जाती है. यस, इट्स नॉट इवन देयर. अगर आप छिपकली आपके ऊपर गिरे ना, कुछ मिली सेकेंड्स आपकी ब्रेथ है ही नहीं. पर इतना सब कुछ हमने इतना टाइम में देखा, बट वी डोंट इवन नो दैट हाउ इज आवर ब्रेथ, जिसकी वजह से हमारा पूरा जीवन चल रहा है. हमने कभी भी अपने श्वासों के बारे में ध्यान नहीं दिया. आपने देखा हर इमोशन का हर कॉरेस्पॉन्डिंग ब्रेथ है, राइट? सो यू आर एंग्री, योर ब्रीदिंग पैटर्न इज फास्ट. You are sad, your breathing pattern is deep, your breathing pattern is so shallow. And at the same time, when you are scared, then you are automatically, you have breath or not, you don't even know that, right? Now, nobody taught that the reverse of emotion का अगर emotion का breathing है, so अगर आप इसको alter कर दोगे तो this will also change. Which means if you sit and you are in angry mode, अगर आपका फास्ट ब्रीदिंग साइकिल को आप थोड़ा स्लो करोगे, यू स्टार्ट टेकिंग डीप इनहेलेशंस एंड एक्सहेलेशंस, योर मूड विल चेंज. यस. पर कभी भी किसी स्कूल, कॉलेज, इंस्टीट्यूट ने हमें नहीं बताया. यस. एंड दैट इज व्हाई वी कंडक्ट दीज मेडिटेशन एंड ब्रेथ वर्कशॉप्स. And your school has been very, very kind to invite us to do these initiatives for not only you as parents but even kids. Because आज की डेट में जितना मन साफ करने की ज़रूरत माँ बाप को है, उतना ही शायद कुछ हद तक हमारी younger generations को भी है, because they are only and only glued to one thing, which is an idiot box. Whether it is any form of, Netflix, Hotstar, Disney, TV, cable. एंड अगर आपको लगता है कि आप अपने मन को अपने मन के स्तर पे हैंडल नहीं कर सकते, यू डेफिनेटली जस्ट नीड टू सिट, टेक अ फ्यू डीप ब्रेथ्स इन एंड आउट, मे बी चैंट एट टाइम्स. हम ओम चैंट कर सकते हैं, अल्लाह, आमीन, एकियम ओमकार, एनीथिंग, एंड देन यू जस्ट सिट विद योरसेल्फ. ऑल आवर लाइफ वी हैव बीन रनिंग आउटवर्ड्स, बट जीवन एक्चुअली में इट्स इनवर्ड्स. This
workshop which we conduct from the Art of Living takes you from a journey of outward to inward. And hence I recommend this strongly for you and for your kids, for your parents, to come and attend. So we have different workshops. So I know a lot of you have kids, and you don't know how to handle them during this lockdown. But my biggest suggestion before I take a few questions is that पहले अपना मन हैंडल करना सीखते हैं, and then you learn to handle the mind of others. बिकॉज इट्स वेरी इम्पोर्टेंट. आज की डेट में हम हर चीज को अपने हिसाब से नहीं कर सकते. इफ यू थिंक योर किड्स आर आर्ग्यूइंग, एट टाइम्स जस्ट एक्सेप्ट एंड लेट गो. This letting go is also an art, but nobody taught us how to let go. हम ऐसे पकड़ के रखते हैं. If you're a housewife or you're a mother, आपको लगता है मेरा पूरा जीवन बस मैं देती जा रही हूँ. पहले as a daughter, then as a wife, now as a mother, as a daughter-in-law, I am just constantly giving. मैं अपनी लाइफ कब जीऊंगी? That causes frustration, that causes stress, that causes anger, that causes a lot of issues, and you don't know how to handle your mind. Yes. So somebody gave some shit to you 10 years ago, हम उसको अभी तक पकड़ के रखते हैं, और जब सैड होने का मन होता है उसको डब्बे से निकालते हैं और ऐसे पोत देते हैं कि आज मेरा सैड होने का मन है, आज मैं लो हूं. एंड वो फिर रिफ्लेक्ट करता है हमारे बच्चों पे, हमारे पेरेंट्स पे, हमारे स्पाउसेस पे. एंड सबसे ज्यादा स्पाउस रिलेशनशिप पे क्यों इम्पैक्ट करता है? बिकॉज जब आप गुस्सा होते हैं, जब आपको हेट्रेड है या फ्रस्ट्रेशन है, यू वांट टू गो एंड शाउट आउट सबसे पहले जो आपके सबसे करीब है. यस, बिकॉज हमने अपना मन हैंडल करना नहीं सीखा. इफ द फर्स्ट पर्सन यू मीट इज योर स्पाउस एंड यू वांट टू शाउट आउट योर हार्ट, क्योंकि आपको नहीं पता वो एंग्जाइटी, वो फ्रस्ट्रेशन कैसे निकाला जाए. वहीं आपका बच्चा सामने आता है, बिकॉज स्पाउस पे हाथ नहीं उठा सकते तो हम सबसे पहले बच्चे पे 2 लगाते हैं. बट आप खुद सोचिए, कुछ साल पहले की बात है, जब आपके पेरेंट्स ने आपके साथ ऐसा व्यवहार किया था, क्या उसका इंप्रेशन अभी तक आपके दिमाग पे है या नहीं? इजंट इट ट्रू? 3rd क्लास में किसी टीचर ने एक पनिशमेंट दिया था, आज तक हमको याद रहता है. बिकॉज दीज इंप्रेशन, दीज संस्कारास वी कैरी, एंड वी कैरी इट फॉर लाइफ टाइम्स. The only way to get rid of impressions of this lifetime and the lifetimes of the past is through Sudarshan Kriya. And the same Sudarshan Kriya is for different age groups. We teach it for parents and teachers like yourself, from anybody above 18 years of age till 80, 90. We have had students जो 80 साल के हैं, क्योंकि सिर्फ बैठ के श्वास लेना है. And also we have these amazing workshops for kids, because आप बच्चों को नहीं सिखा सकते हैं, आप बच्चों से सीख सकते हैं. बट द ओनली थिंग इज, हमें लगता है जितना हमें सिखाया गया है, हम उतना ही आगे सिखाएंगे. एंड हम लगता है अगर मैं बोल रहा हूँ ये सही है तो ये मान लो ये सही है. पर आपको कैसे पता ये सही है? इट्स योर इम्प्रेशन दैट ये सही है. यस. एंड जब तक हम स्वीकार नहीं करते, हम एक्शन नहीं ले पाते. So in all these workshops that we teach, we tell you how to accept the situations, accept yourself first, how to handle your mind, क्योंकि आप जब तक खुश नहीं हैं, आपका वातावरण कभी खुश रह ही नहीं सकता. So इसीलिए आर्ट ऑफ लिविंग में बहुत सारे ऑनलाइन मेडिटेशंस निकाले. गुरुदेव श्री श्री रविशंकर खुद आकर 2 टाइम ध्यान और ज्ञान करा रहे हैं. बिकॉज यू कैन नॉट हैंडल योर माइंड एट द लेवल ऑफ माइंड, you handle the mind at the level of breath. How? सब सोचिए, एक मन एक पतंग की तरह है, राइट? पतंग का क्या काम है? ऐसे उड़ते रहना, कहीं भी उड़ के जाती है. सिमिलरली आपका मन है, पास्ट फ्यूचर, पास्ट फ्यूचर. 2 महीने से मैं घर बैठा हूं, क्या कर रखा है, क्या हालत हो गई है, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा. फ्यूचर क्या होगा, आगे चल के नॉर्मल होगा, नहीं होगा, एंग्जाइटी लेवल्स. सो पूरा टाइम आपका मन पास्ट फ्यूचर में ऑसिलेट करता है. अब पतंग को कैसे हैंडल कर सकते हैं? थ्रू मांझा. अब दिस मांझा ऑफ योर माइंड इज नथिंग बट द ब्रेथ, राइट? एंड दैट्स व्हाट वी हैव लर्नड अबाउट दिस, हाउ टू ऑल्टर योर ब्रेथ टू हैव एन अमेजिंग माइंड.
And that's exactly what we teach at these workshops. Right? पहले अपना मन हैंडल करेंगे और फिर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारा वातावरण, क्योंकि आप देखिए अगर आपके घर पे किसी एक व्यक्ति का भी मूड अच्छा नहीं होता है, पूरा घर का वातावरण खराब होता है. यस नो, यू ऑटोमेटिकली फील आज घर में ना कुछ, पापा अगर घर में घुस रहे हैं तो बच्चे से पूछेंगे मम्मी से लड़ाई हुई है क्या, थोड़ा टेंशन वाला माहौल है. यस, और अगर मम्मी किचन से आई है थोड़ा सा ऐसे एक ऐसा ऊपर चढ़ा हुआ है, तो फिर हम बच्चा एकदम से ना सहम के कोने पे चला जाएगा कि कुछ तो लोचा है. बिकॉज वी ऑल गो थ्रू दीज वाइब्स, सॉरी, वी ऑल गो थ्रू दीज वाइब्स. आप अपना वातावरण कैसे ठीक कर सकते हैं वो अंदर जाके है, बाहर जाके नहीं है. फॉर ऑल दीज इयर्स यू वांटेड दिस टाइम कि हम अपने फैमिली के साथ बैठ के मूवीज देखें, अंताक्षरी खेलें, रामायण देखें. पर आज की डेट में अगर घर में 3 टीवी है, वो 3 टीवी पे अलग अलग सीरियल्स चलते हैं. हम इकट्ठे खाना नहीं खाते क्योंकि सोने का टाइम अलग है, बैठने का टाइम अलग है, खाने का टाइम अलग है. सो गुरुदेव रविशंकर जी हैज गिवन फ्यू टिप्स जो मैं आपके साथ शेयर कर सकती हूँ. द वेरी फर्स्ट टिप ही सेड इज give your kids and your parents and your spouses the room for imperfection. उनको imperfection मतलब उन्हें गलतियां करने का स्कोप दो. जैसे आप गलती करते हो वैसे वो भी करते हैं. तो जैसे आपके घर में अगर हर जगह पे डस्टबिन आपने रखा है ना, ऐसे अपने जीवन में एक डस्टबिन रखो जिसमें अनवांटेड स्टफ फेंकना शुरू करो. उससे क्या होगा, पहले मन साफ हो जाएगा. सेकंड, do spend 1 hour each day with your kids. अपने बच्चों के साथ 1 घंटा विदाउट फेल जरूर बैठें. एंड क्यों बैठे, और उस टाइम पे प्लीज उनका होमवर्क क्या पढ़ रहे हैं क्या नहीं किया, क्योंकि वो आज तो आपके साथ मजबूरी में बैठ जाएंगे, नेक्स्ट टाइम वो ऐसे भाग जाएंगे, क्योंकि हमने भी यही किया. मेंटल मैथ्स शुरू मत करो, 2 + 2 बताओ, 9 × 4 बताओ, 3 × 5 बताओ. एंड बच्चा इज लाइक बाय, हमेशा ऐसा क्यों. जिस तरह से आपको नहीं पसंद कि कोई आपके सर पे सवार रहे, सिमिलरली आपके बच्चों को भी नहीं पसंद कि आप उनके सर पे एकदम ऐसे हिटलर चाबुक लेके बैठे रहें. गिव देम स्पेस. इवन इफ दे आर 5 years old, they need their space. Even if they are 15, they need their space, and they need their space more. If you want your space to be respected, respect their space. That 1 hour when you sit with your kids, your toddlers, trust me, you can make the most of it. जिस तरह से आज मैंने आपको 2 कहानियां सुनाई, अगर आप टीवी बंद करके अपने जीवन की कुछ कहानियां उनके साथ शेयर करेंगे, आपका बॉन्ड बढ़ेगा. It's extremely important in this lockdown that you give them their right and the righteous time of their life, because अगर आगे चल के आप नहीं चाहते कि आपका बच्चा आपके साथ बैठ के सिर्फ व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक करे और आपकी तरफ आपकी बात सुने, तो आज आपको वो नींव रखना पड़ेगा कि आप उनका टॉम एंड जेरी अपना फोन बंद करके उनके साथ बैठे. टॉम एंड जेरी या कार्टून लगा के उनको छोड़ देना ताकि आपकी सरदर्दी कम हो जाए, दैट्स रॉन्ग. 24 में से 1 घंटा आप अपने बच्चे को विदाउट एनी एजेंडा जस्ट सिट विद देम, hear them out, hear their life, share your life. This will build your bond. And ये लॉकडाउन एक ऐसा टाइम पीरियड है जिसको या तो आप ग्रम्बल करके निकाल सकते हैं या फिर एक हैप्पी स्टेट ऑफ माइंड, एक याद, अच्छी याद बनाकर रख सकते हैं. चॉइस टुडे इज योर्स. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली गुरुदेव सेज मेक देम डेक्स्ट्रस. डेक्स्ट्रस क्या है, खाली पढ़ाई नहीं, उनको योगा, मेडिटेशन, एट द सेम टाइम म्यूजिक, क्लासिकल संगीत जैसे जैसे जाए जा रहा है, आप उन्हें कोई इंस्ट्रूमेंट जरूर सिखाएं. एट द सेम टाइम यू लर्न विद देम, मे बी पुट देम फॉर अ डांस क्लास. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव देम मल्टी लिंग्विस्टिक, मल्टी कल्चरल, मल्टी डायमेंशनल. आप देखिए आज की डेट में जो भी फ्लैम्बॉयंट पर्सनैलिटीज हैं वो सिर्फ एक चीज में अच्छे नहीं है, दे आर जैक ऑफ ऑल द ट्रेड्स. दे शुड बी, यू नो, आफ्टर दिस लॉकडाउन दे शुड ग्रो समविट. अगर यहाँ पे शुरू हुए थे वो यहाँ खत्म होना चाहिए 3-4 महीने बाद. दैट इज द रियल ग्रोथ. और वो ग्रोथ तब होगा जब हमारा मन शांत होगा. अगर हम अपने ऑफिस और एंजाइटी और अपने इमोशंस का बोझ बच्चों पे डालते हैं, हाउ कैन यू एक्सपेक्ट देम टू ग्रो.
दिस ब्रिंग्स मी टू अनदर स्टोरी. आप सुनना चाहेंगे? आई एम गेसिंग यस. स्टोरीज एक ऐसी चीज है ना जो हमेशा बच्चों को क्या बड़ों को भी बांध के रखते हैं. आप खुद के लिए देखिए. ये तीसरी स्टोरी है जो मैं सुना रही हूँ. सो इट्स एक्चुअली सो ट्रू. अगर आपको इस एज पे स्टोरी सुनना पसंद है, आप बच्चों का सोचिए. सो आप एक फार्मर था, उसने बहुत सारा ऐसे सीड्स डाला. जैसे आपने देखा ही है, आओ आओ आओ. तो उन्होंने ऐसे बहुत सारा सीड्स डाला एंड घर वापस गया, अपनी बीवी के पास बैठा ही था और फिर भाग के बाहर गया खेतों में. फिर पूरा खाद हटा के देखा और फिर डाल के वापस आ गया. खाना खाया, फिर खेत की तरफ भागा, फिर खाद हटा के देखा, फिर वापस आ गया. उसने 2-3 दफा ऐसा करा और उसकी बीवी ने हार के पूछ ही लिया, तुम क्या कर रहे हो? हर 1-2 घंटे में बाहर जाते हो, खाद हटाते हो, देखते हो. कह रहे मैंने बीज डाले थे, मैं देखने गया था वो उगे या नहीं. आप खुद समझदार हैं. गिव इट सम टाइम. थोड़ा सा पेशेंस, थोड़ा सा समय और बहुत सारा प्यार इज व्हाट योर किड्स नीड टुडे. एंड बार बार कुरेद कुरेद के देखने से वो मर जाएंगे. That's how the seeds happen, right? The plants will not blossom, the seeds die because constantly आप उसको बार बार छेड़ रहे हैं. कई बार चीज़ों को बीज डाल के सिर्फ उसके ऊपर पानी, खाद, प्यार से संजोना पड़ता है. And then you just surrender. This surrender, this samarpan is what we teach on the course. Yeah. And आप बाहर तो इतने टाइम से रैट रेस में जा ही रहे हैं. ऑफिस, घर, घर के काम, राशन पानी, पीवीआर, मूवीज. बट इट्स टाइम, आपके पास बहुत सुंदर मौका है अंदर जाने का. सो एंग्जाइटी में मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा, होगा न्यू नॉर्मल. दैट्स द बज वर्ड. द न्यू नॉर्मल, हाउ इट वुड लुक लाइक इज एग्जैक्टली उसको ड्रॉप करके अगर हम थोड़ा सा अंदर जाएंगे, अपने साथ समय बिताएंगे 15 से 20 मिनट, 1 घंटा बच्चों के साथ समय बिताएंगे एंड एक दूसरे की स्पेस को रिस्पेक्ट करते हुए वी कैन मेक दिस लॉकडाउन अ वेरी हैप्पी एंड अ ब्यूटिफुल लॉकडाउन. द चॉइस इज ऑलवेज योर्स. बट अगर अभी भी हमें लगता है कि हम नहीं कर पा रहे हैं और कैसे मैनेज कर पाएंगे, कैसे हैंडल कर पाएंगे, तो कुछ ट्रिक्स हैं. या बिफोर सुदर्शन क्रिया जो हम कोर्स पे सिखाते हैं. जनरली दिस कोर्स वाज फॉर 2500 rupees, but because we wanted to reach to millions of people across the globe, we have been doing this only for 1200 rupees, and we do it online. It's basically nothing but to handle your mind through the breath. The workshop itself is called as online meditation and breath workshop. So the next workshop details I will send it through the school management. आप स्कूल के थ्रू ले सकते हैं. And also the same thing we are doing for kids. 7 से 12 साल तक के बच्चों के लिए 11 से 14 तारीख 11th June to 14th June आप अपने बच्चों को 2 घंटे के लिए भेज सकते हैं. And the details your school teacher, school management can share. I will share with them, and you can enroll and ensure that your kids learn how to sit with themselves. And at the same time, it's very important you learn to sit with yourself. जब हमें खुद के साथ बैठना आ जाता है ना, तो हमें फिर ऐसा नहीं लगता यार कितना बोरिंग हो रहा है. क्योंकि आप खुद कितना अपने लिए बोरिंग हैं, हम ये नहीं समझ पा रहे हैं, तो हम दूसरों के लिए कितने बोरिंग होंगे. इसीलिए these workshops are designed to go inwards, learn to love yourself, learn to love your company, and then you overcome it. एंड द सेम थिंग्स इन दिस लॉकडाउन. अगर कुछ नया नहीं सीखा तो फिर वही है ना, समर वेकेशन इतनी सारी आई और इतनी सारी चली गई. हम ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे. शायद ये एक अपॉर्चुनिटी है वो सब करने का. आई स्टार्टेड लर्निंग एंड आई स्टार्टेड लर्निंग अ लॉट ऑफ न्यू थिंग्स जो मैं इतने साल नहीं कर पाई. मैं खुद आई एम अ जुम्बा डांसर एंड आई स्टार्टेड टीचिंग ऑनलाइन क्लासेस. एट द सेम टाइम मैं ऑफलाइन हैप्पी मॉडल में ही हम लोग इनफैक्ट क्लासेस सिखाते थे. सो स्कूल हैज बीन सो काइंड टू गिव अस दिस स्पेस. दे हैव टेकन दिस लिबर्टी टू इनवाइट पीपल टू कम एंड लर्न सुदर्शन क्रिया. नाउ दे हैव टेकन दिस इनिशिएटिव टू डू इट ऑनलाइन ऑल्सो. So I think this is a brilliant, brilliant thing. You are so lucky to have this management supporting you. I think you should not leave this chance.
So you, after this workshop, maybe, you know, we can, after this online session, you can actually go ahead, get in touch with the school teachers, principal, and send your kids, because आप बच्चों से सीख सकते हैं, उनको नहीं सिखा सकते हैं, क्योंकि they naturally are so amazing. They don't need you to train them, but you definitely can learn from them how to handle the mind, how to handle the breath, because they automatically are in the present moment. वो पिछला पकड़ के नहीं रखते हैं, वो अगले दिन सुबह लड़ाई के बाद आके फिर आपको गले लगाएंगे. हम पकड़ के रखते हैं कि सास ने ऐसा बोला, बॉस ने ऐसा बोला, पति ने ऐसा बोला, इसका काम ही है रोते रहना. But at the same time, you really need to alter the way to live. Yes, the way you learned art to cook, art to paint, art to handle kids. It's time you learn art to handle the mind. So right now we'll do a quick practice of learning to handle the mind and get more energy. I hope you want to learn it. Yeah, आप सीखना चाहेंगे. Yes. So we'll sit a little comfortably. आप थोड़ा आराम से बैठ जाएं, जहाँ पे शोर नहीं हो. तो कुछ 5-7 मिनट का हम ध्यान करेंगे, आंखें बंद रखेंगे, right? And this technique is called Bhastrika Pranayam, right? So आप पहले मुझे देख सकते हैं कि कैसे करना है, and then you can follow. So you will sit with your eyes closed, loose fist in front of the shoulders, elbows touching the rib cage. आपके स्टमक के बिल्कुल पास में आपका कोनिया, राइट? हाथ ऊपर जाएगा तो मुट्ठी खुलेगी, नीचे झटके से आएगा. जैसे कोई बॉल है, हाथ ऊपर गया और छूट गया. So that's how we will do it. You will just keep your eyes closed and take a long deep breath in and let go. एक और लंबा गहरा श्वास अंदर और जाने दें. Take another long deep breath in. आंखें बंद ही रखेंगे जब तक कहा ना जाए, और पूरे जोश में श्वास अंदर, 1, अंदर 2, अंदर 3, अंदर 4. चालू रखें, साथ में ब्रीद इन, कंटिन्यू, and relax. हथेलियां घुटनों पर, आकाश की ओर. Keeping your eyes closed, just relax, be with the breath. आंखें बंद रखते हुए let's get ready for the second round of Bhastrika. ढीली मुट्ठी. भस्त्रिका से बहुत सारा ऊर्जा जनरेट होता है. There's a lot of energy you generate. So keeping your eyes closed at this time is very important. आंखें बंद रखना अनिवार्य है. एक जोश के साथ, पूरे उत्साह के साथ श्वास अंदर, 1, अंदर 2, अंदर 3, अंदर 4, अंदर 5, अंदर 6, अंदर 7, अंदर 8, अंदर 9, अंदर 10. विश्राम करें, हथेलियां घुटनों पर, आकाश की ओर. जब हम श्वास लेते हैं तो ऊपर जाके मुट्ठी खुलेगी और नीचे आके बंद हो जाएगी, और झटके से श्वास छोड़ेंगे. We leave it with a little force. One last time, let's do it together. Keeping our eyes closed. With full force and enthusiasm, with a big smile. नकली भी चलेगी, ब्रश नहीं किया है तो भी चलेगी. एक साथ पूरे जोश में श्वास अंदर, झटके से छोड़ें, बाहर, अंदर, 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 बाहर. और विश्राम करें, आंखें बंद. सिट इजीली एंड कंफर्टेबली. आप चाहें तो बैक सपोर्ट लेके आराम से बैठ सकते हैं. हम 5-7 मिनट थोड़ी देर आंखें बंद रखेंगे, और जो भी हो रहा है
बस सुनते हुए धीरे धीरे सिर्फ विश्राम करेंगे. Take a long deep breath in and breathe out. Take another long deep breath in और जाने दें. सब कुछ अंदर ही है. आंखें बंद रखते हुए जो भी हो रहा है उसे होने दें. You will just hear the guided instructions and follow them. वातावरण में जो भी आवाजें हो रही हैं उन्हें स्वीकार कर लें. Observe all the noises in the environment and absorb them. एक और लंबा गहरा श्वास अंदर और जाने दें. Become aware of the body. अपने शरीर के प्रति सजग हो जाएं. Slowly take your attention towards your right foot. धीरे से अपना ध्यान अपने दाएं पांव की ओर लेकर जाएं. दायां घुटना, राइट थाई, पूरा दायां पांव, लेफ्ट फुट, बायां पांव, बाएं पांव का घुटना, लेफ्ट थाई, whole of the left leg. Breathe in and with a smile let go. आंखें बंद, श्वास छोड़ दें. Take attention towards your hips. अपना ध्यान अपने कूलों की ओर लेकर जाएं. Take a long deep breath in and with a big smile let go. Breathe out all the anxiety and the stress. Take your attention towards your stomach. अपनी नाभि की ओर अपना ध्यान लेकर जाएं. Chest, छाती, गला, your throat. आंखें बंद रखते हुए एक लंबा गहरा श्वास अंदर और जाने दें. Take another long deep breath in and take your attention towards your right shoulder. अपने दाएं कंधे की ओर अपना ध्यान लेकर जाएं. Left shoulder, बायां कंधा. Feel the stress going away. Right hand, right elbow, पूरा दायां हाथ, left hand, left elbow, just relax and let go. विश्राम करें, केवल विश्राम. एक लंबा गहरा श्वास अंदर, आंखें बंद रखते हुए take a long deep breath in and let go. Breathe out. Slowly take your attention towards your face. अपने चेहरे की ओर अपना ध्यान लेकर जाएं. Eyes, nose, cheeks, chin, पूरा चेहरा. मुस्कुराते हुए एक लंबा गहरा श्वास अंदर
और बाहर। टेक योर अटेंशन टुवर्ड्स द टॉप ऑफ योर हेड। सिर की चोटी की ओर ध्यान लेकर जाएं। योर बॉडी इज द बिगेस्ट गिफ्ट। आपका शरीर कुदरत की सबसे सुंदर देन है। इसका आदर करें, सम्मान करें। Take another long deep breath in and breathe out. Slowly take your attention towards your thoughts. अपने विचारों के प्रति अपना मन लेकर जाएं। अच्छे विचार या बुरे विचार आने दें, रोके नहीं। Take attention towards your feelings, good feelings or bad feelings. Just keep observing the sensations in your body. एक और लंबा गहरा श्वास अंदर और बाहर। मुस्कुराते मुस्कुराते जस्ट रिलैक्स। इस समय केवल विश्राम करें। हर अंदर आती हुई श्वास शरीर को ऊर्जा देती है और बाहर जाती हुई विश्राम। Every incoming breath energizes your body, and every outgoing breath relaxes it. Just relax. शरीर से और मन से स्ट्रेस को जाते हुए देखें एंड धीरे धीरे अपने वातावरण के प्रति सजग हो जाएं। Observe the sensations, your feelings, good feelings or bad feelings. Your thoughts, good thoughts or bad thoughts, just आने दें और जाने दें, पकड़े नहीं। एक और लंबा गहरा श्वास अंदर, fill in your lungs and slowly breathe out. खाली कर दें। Become aware of your body. अपने शरीर के प्रति सजग हो जाएं। Become aware of the surrounding noises. वातावरण में जितनी भी आवाजें हो रही हैं उनके प्रति सजग हो जाएं। You are peace. You are joy. Take another long deep breath in and exhale completely. खाली कर दें। Take another joyful long deep breath in and let go. वातावरण के प्रति सजग होते हुए, taking your own sweet time, you may slowly and gradually open your eyes. धीरे से अपना समय लेते हुए आंखें खोल सकते हैं। Welcome back.
अगर आपने शुरू से अंत तक करा है फ्रॉम भस्त्रिका टू ध्यान, दिस वाज अ गाइडेड मेडिटेशन. सो दिस टुक अबाउट 11 to 12 मिनट्स. आपने 11 से 12 मिनट होशो हवास में आंखें बंद रखी हैं. रात को क्या होता है, आपकी आंखें चीख चीख कर बोलती हैं सो जा, और हम कहते हैं एक एपिसोड और देख लेते हैं. बच्चों का होमवर्क, ऑफिस का काम, सब कुछ करते करते जब तक आपकी सेंसेस तबाह नहीं हो जाते, वी एक्सप्लॉइट देम. एंड देन वी से सुबह उठा नहीं जाता, लॉकडाउन में चिड़चिड़ापन बढ़ गया है. क्यों? क्योंकि हमने नेचर के विपरीत जाना शुरू कर दिया है. And because we went against the nature, this lockdown is a result of that. This quarantine is the result of that. We are the product of our past. जैसा हमने व्यवहार पास्ट में किया, इसीलिए हमारा आज है. आज को नहीं संवारेंगे तो आने वाला कल खराब हो जाएगा. So I sincerely invite you to the next workshops where we, ये तो सिर्फ एक टिप ऑफ द आइसबर्ग है, 12 मिनट. फॉर 4 days 2-2 घंटा सिर्फ अपने लिए समय निकालें, अंदर जाएं, सो दैट नॉट ओनली यू बट इवन योर फैमिली, योर किड्स, योर फ्रेंड्स, पूरा वातावरण धीरे 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 ठीक होने लग जाएगा. So I sincerely request you to contact the school management. They are taking such brilliant initiatives. In fact, school के कुछ teachers ने खुद course किया है, and few of them are coming for the next workshop. So I mean, it's a brilliant initiative by Asta ma'am, Seema ma'am, Anita ma'am, Anayita, Kamal. Everybody has been so amazingly coordinating ताकि आपका जीवन में कुछ growth हो. Yeah, so that your kids benefit, so that you have a happy and a calm state of mind. I would request you to come for the next workshop, and we will also send you a small feedback form. अगर आपको आज के सेशन में कुछ अच्छा लगा, या आप चाहते हैं कि कुछ और आपको मिले, या कंटेंट अच्छा हो, या मेरी बिंदी ठीक नहीं थी, तो कुछ भी आपको लगता है, आप most welcome to write about the feedback. I had a few questions. We still have 5-7 minutes. I will take them up for you. And if you still have questions, you can send it to the school, and maybe we can do one more session like that sometime in the near future. Yeah, so I'll just read out a few questions. Somebody asked, do we need to make the children follow a set routine at home during quarantine? आई थिंक जिन्होंने ये क्वेश्चन पूछा है, पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगी, क्या आपका कोई सेट रूटीन है? क्या आप सेम टाइम पे उठ के एक्सरसाइज करके प्रातः काल सूर्य उदय होने के साथ से लेके ध्यान, ज्ञान, काम, खुश रह पाते हैं? अगर आपको रूटीन में बांधा जाए, क्या आप बंधना पसंद करेंगे? और क्या आप आज की डेट में वो खुद फॉलो कर रहे हैं जो हम बच्चों से उम्मीद करें? सो मेरे पास जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, मैं उन्हीं का एग्जाम्पल ले सकती हूँ. एंड नोबडी लाइक्स टू बी टाइड. आपको भी नहीं पसंद और बच्चों को भी नहीं पसंद. आप उनसे बल्कि सीखें, एंड लाइक आई सेड, गिव देम टाइम एंड स्पेस, गिव देम लॉट्स ऑफ लव, अनकंडीशनल लव. पहले आप फोन साइड पर रखकर, टीवी बंद कर कर बच्चों को पकड़कर उनके साथ बैठें, उनको प्यार दें, एंड देन यू विल सी द डिफरेंस इन योर रिलेशनशिप विद देम. I hope that helps. How to teach children the practice of yoga and meditation in the easiest possible way? Please send them for the next workshop. 11 से 14 जून, उसका डिटेल स्कूल आपको दे देगा. शाम को 4 से 6 2 घंटे का वर्कशॉप है, मात्र 1200. ऑटोमेटिकली दे लर्न नॉट ओनली ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, नॉट ओनली योगा. ये सिर्फ छोटा मांगा है आपने, इससे बहुत कुछ और जीवन जीने की कला दे लर्न. Yeah, the age group is 7 years to 12 years. Yeah. How to give a healing touch to the sensitive children during the present times, and how to heal their souls. I think, सबसे important है हम पहले खुद का soul के बारे में देखें, है ना. There are 7 levels of our existence. हमारे 7 स्तर हैं: body, breath, mind, intellect, memory, ego and the self. इन 6 पे जब काम कर लेते हैं ना, तो अपने आप से self पे काम हो जाता है, which is the soul. And most important right now thing is that you should actually go ahead and ensure that your kids are busy, they work, and they learn new techniques to go ahead and be in that zone where they can really learn some new things. Yeah.
they will automatically heal, because children have a natural defense mechanism against the changing environment. जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हम अपने स्वभाव से दूर होना शुरू हो जाते हैं, and that is why we feel that we have stress. Children naturally know how to heal themselves, so I think it's time we work on ourselves, and they are already blessed, and let's just learn from them and ensure that they're in the right company. That's what matters. So children at home become naughty and get scolding from parents as they agitate them. We just spoke for 50 minutes on this. Children are born to be naughty. Yeah, एक बच्चा 400 से 500 बार दिन में मुस्कुराता है. जैसे ही वो टीनेजर होता है वो मुस्कुराहट कम से कम हाफ रह जाती है, और जैसे ही आपके और हमारी तरह की एज में आते हैं वो शायद 20 से 25 बार होता है. एंड हम और थोड़ा बड़े होते हैं तो हम खुद तो मुस्कुराते नहीं और दूसरों को देख के बोलते हैं तू पागल है, तू हंस क्यों रहा है. एंड बिकॉज दे आर नॉटी, दे आर इन देयर एलिमेंट. हमारा स्वभाव नहीं है कि हम वो उनकी नॉटीनेस या उनका प्रेजेंट मोमेंट संभाल पाए, इसलिए आप उनकी जगह खुद का मन संभालेंगे तो ऑटोमेटिकली यू विल बी हैप्पी, एंड आपकी एजिटेशन उन पे नहीं निकलेगी. बिकॉज यू आर एजिटेटेड इट कम्स ऑन टू देम एंड वो और शरारतें करते हैं. सो माई ओनली थिंग वुड बी यू कैन कीप योर काम एंड एंश्योर दैट दे बिकम, they will follow your footsteps. Yes. You can only calm them by calming yourself first. Yes. Very, very important. If you want that they should learn something new, do give them, dance, music, yoga, make them more dexterous. And limit the TV intake to 1 hour. That's it. दिन में सिर्फ 1 घंटा उनका TV. Otherwise, these impressions of pictures and songs and music stay forever. एंड आगे चल के आजकल बहुत कॉमन डिजीज है बच्चों में, विच इज ADSD, विच इज अटेंशन डेफिसिट सिंड्रोम. एंड ये डेफिशिएंसी बढ़ती जा रही है ओनली बिकॉज देयर ब्लू लाइट टाइम विच इज ऑन द गैजेट, ऑन iPads, on mobile phones and on TV has increased. So like I shared, give them exclusive time, read them some stories, share your stories, shut off the blue light, and restrict the TV to only 1 hour a day. You will see that your bond with the kids has increased. आप घर में ध्यान करना शुरू करें, बच्चों को ध्यान करना शुरू कराएं, and then धीरे धीरे आपके पूरे घर का वातावरण बेटर होने लग जाएगा. And most important, we had a few more questions. I think Anita ma'am had sent. How do you manage your anxiety level and how do you balance stress-free time? So I think all this workshop we conducted has already helped you answer that. So the biggest anxiety about us is about the future. How will we handle the future? Yes. When you know the future is so uncertain, what we can do is just encapsulate this moment, just capture this present moment and automatically live it, because we've worked hard to get this time, to have this time with our parents, with our family, and finally now we have it. Let's value it more and let go of the future. I think you will all agree, jab aap 10th mein the, you already were anxious about board exams. Then you came to 12th, you were again more anxious. You were anxious about college, you were anxious about life partner, you were anxious about kids. But this all worked well in your favor, and I'm guessing yes. So know that if it worked in the past, it will work in the future. Just be in the present. Yes. How to decrease the screen time of children? The only way is give them your time. Yes. And encourage them into, देखो अभी इस time पे when Gurudev says you can't decrease or reduce, because this is the time when they only have an option to do everything online. So if they're a dance class, it's online. If it's a music class, it's online. But they're learning something. How to reduce the gadget time after COVID? Because send them to more physical activities. उनका शरीर हिलना बहुत ज़रूरी है. And how to manage isolation? By just going inwards. जब हम अंदर गोता लगाते हैं तो बाहर सब कुछ मैटर करना बंद कर देता है. The only journey of life is to move from outward to inwards. And with this, I think I come to the end of this amazing workshop. And if you have more questions, you can send it to us, and you can find me on Facebook. You can write to
Anita ma'am, Seema ma'am, and all the school people who have done this amazing initiative for you all. So I really hope you've enjoyed, you learned something, and we'll share a feedback form with you. And definitely most welcome to be part of these sessions. So that's it from my side. Thank you on behalf of the school, management, and Art of Living. At the same time, thank you for having me over. So over to you, Anaita. Thank you so much, Pooja. It was indeed a very enriching experience with you. I mean, wow, it was just amazing. I mean, I think this was a session all about introspecting about ourselves, how to spend some quality time with our children, because I think in this fast pace of life, coronavirus, this pandemic has actually, been an eye opener for us to actually reflect upon ourselves, to kind of rebuild the relationships that we might have neglected for long, or why we would have, like, in this fast pace of life, wouldn't have paid attention to. I think this is the best time to actually form a bond with our kids. I think we can engage them in any recreational activity. And talking about patience, yes, a change in perspective, a change in, an alteration in the way we think, I think that is going to work wonders with our kids. And I'm really thankful to you and Happy Model School for actually taking such initiatives. These initiatives have been fantabulous, and we hope and we wish that you keep coming to a school again and again and keep holding these webinars again and again. And I really wish that, now the parents, they spend quality time with their children. And as you talked about, that we should actually, let them just come out with all the emotional baggage that they have, and just let them pour it out with their parents. And the parents also develop that patience, that control of their emotions, to actually listen to their children and be a participant in whatever creative things that they come up with. I think that's a wonderful initiative that they would be taking, and I think that will pave a way for a better future. And I'm really thankful to Asta ma'am for actually, even enlightening me with making me a participant of such enlightening sessions. I have been a part with Art of Living before, but I think this has been a complete, mind-blowing session, and a complete overhaul of what I have thought, of what I have been thinking about the meditation, the power of breath. Thank you so much, Pooja, and thank you so much, Asta ma'am, and the faculty, the fraternity, HMS fraternity, for having you with us. Thank you so much. It was pleasure having you all with us. I hope that we make the most out of this pandemic and we spend quality time with our kids. We just let them pour their emotions out, help them with all the creative activities, and give them a tight hug, because the power of hug can do wonders to our children. So I hope that the next time when the HMS welcomes our energy-filled children back into the school, we have a completely changed and a charged atmosphere in our school. So we just wish that our children, our cute little angels, come back soon. And thank you so much, all the students and parents, for joining us in this fantabulous session hosted by and conducted by Ms. Pooja Arora. Thank you so much for joining us. Thank you.